स्पेसिफिक डिटेल्स कैसे पूछे? लेट्स क्विकली रन टू दिस framing. Could you please explain me the steps for dash dash dash? Could you please tell me the steps for enrolling in the course? Could you please explain me the steps for you know uh, making some variety, making some cooking some delicacies? Okay, एक particular process होती है, जो process जिसमें अलग अलग steps आते हैं. Okay, so you can say, could you please explain me the steps for whatever, as per your need, as per your situation, you use it. What are the requirements for applying for scholarship? What are the requirements for applying for the job? What are the requirements for applying for student visa? What are the requirements for getting into, the government job? Requirement मतलब criterias क्या क्या है? Okay, अगर आप scholarship के criterias देखो, तो obviously you have to be a good student. Okay, you have to fill the application form. You have to submit the application form. ये सारे उसके requirements होते हैं. ठीक है? So जब आपको requirements पूछनी हो, तो this is the way you ask. What are the requirements for? Okay. The next one is what is included? Okay, like what is included in the menu for lunch, maybe for dinner. Okay, when you're going to a restaurant, you need to check the menu and then see. So what is included in the standard membership package? Okay, आपके पास एक पैकेज है, उसमें क्या क्या included है? Okay, what are the benefits included in the club membership that I'm about to take? Okay, मैं इतना पे कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स इंक्लूडेड है? So what is included is a form of asking when you want to know what benefits you are getting. Okay. The another question is, can you clarify? So you're asking about clarification. Okay. Can you clarify the payment options for service? Okay. Like, can I pay through Google Pay? Can I pay through the bank, the cash? Okay. Can you clarify? Can you throw some more light on it? Okay. I hope आप समझ रहे हो people. Is the session interesting? I hope you are understanding. समझ में आ रहा है आपको? You are comfortable with the flow? Great. Great. Nice. Happy to see the yes. Okay. Great. There are certain questions जो मैंने यहाँ पे देखे. How long will running course? There are certain corrections. हम उस पर बातें करेंगे. कुछ लोगों ने मुझे questions दिए. We'll talk about it later. Let us quickly first run with the rest of the session. Because ये थोड़ा detailed session है people. I really want you to get a good understanding of it. Okay. हम मूव ऑन करते हैं एंड क्लियरिफिकेशन. जब हमें कुछ क्लियरिफाई करना हो, कुछ और पूछना हो, जानना हो. आई एम नॉट क्वाइट श्योर आई अंडरस्टैंड. कुड यू एक्सप्लेन वॉट एवर ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, आपको एक बार उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया और आपको वो समझ में नहीं आया, तो आप कैसे बोलोगे? यू कैन से इट दिस वे, आई एम नॉट क्वाइट श्योर आई अंडरस्टैंड. सो कुड यू एक्सप्लेन इट अगेन. ओके, द एग्जाम्पल यहाँ पे करा हुआ है, देखो. आई एम नॉट क्वाइट श्योर आई अंडरस्टैंड. कुड यू एक्सप्लेन द प्राइसिंग स्ट्रक्चर अगेन. ओके, जैसे आप कुछ शॉपिंग करने जाते हो या कोई मेंबरशिप ले रहे हो, कोई स्कॉलरशिप कहीं एडमिशन लेने जाते हो कॉलेज में, तो एडमिशन के क्राइटेरियाज आपको एक बार तो एक्सप्लेन कर दिए, आपको समझ में नहीं आए, सो यू कैन आस्क देम अगेन. आई एम नॉट श्योर कि मैं समझी हूँ, आप मुझे वापस बताओगे प्लीज, समथिंग लाइक दैट. ओके, कुड यू इलाबरेट ऑन. आपने हमें बताया कि मुझे लाना है माय एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है, प्लीज आप मुझे डिटेल में बताओगे. कुड यू इलाबरेट ऑन एसओपी, यू अंडरस्टैंडिंग, समथिंग लाइक दैट. ओके, जैसे आपको टीचर ने समझाया, फोटोसिंथेसिस इज दिस इज द प्रोसेस. ओके, एंड देन यू कैन से, मैम आई रियली अंडरस्टूड द प्रोसेस, बट कैन यू जस्ट रीटेल इन डिटेल प्लीज. ओके, तो ये कुड यू इलाबरेट प्लीज, किसी चीज को और डिटेल में जानने के लिए आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो. ओके, कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल. अब आपने पहले, आपको समझ नहीं आया, द पर्सन ने रिपीट करा, फिर आपने उसको डिटेल में पूछा, अब आप क्या मांग रहे हो? एग्जाम्पल मांग रहे हो, समझने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए. ओके, सो कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द न्यू सॉफ्टवेयर फीचर वर्क्स. ओके,
तो ये है एक एग्जाम्पल. कैन यू एक्सप्लेन मी हाउ द न्यू मोबाइल, द न्यूली लॉन्च्ड मोबाइल फीचर वर्क्स? Okay. Can you explain me how the photosynthesis process works? Okay. Something like that. Something where you want an example on. I need more information on the upcoming changes to the schedule. Could you help me with that? फ्लाइट शेड्यूल में चेंज हुआ है कि ट्रेन के टाइमिंग में चेंज हुआ है, यू नो, कि कुछ अपने टीचिंग स्ट्रक्चर में चेंज करा है टीचर ने, या यू नो आपके सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है. सो यू कैन आस्क इन अ वे, आई नीड मोर इंफॉर्मेशन ऑन द अपकमिंग चेंजेस टू द सिलेबस, टू द करिकुलम. कुड यू हेल्प मी विथ इट? आप मुझे हेल्प करोगे? कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी? ओके. तो ये सारे आप क्लियरिफिकेशन मांग रहे हो. यूजिंग दीज थिंग्स you are asking for clarification. Okay. Questions for clarification? Can you explain that concept again? Could you give me an example of that? What does this term mean? Like photosynthesis, जैसे अभी हमने example बोला, photosynthesis means. How does this topic relate to what we've learned before? Okay. चलो ना, अब ये क्वेश्चन आया है तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि अभी हम जो कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग नाउ, आपको लग रहा है कि जो हमने प्रीवियस टॉपिक्स करे उसके साथ रिलेट हो रहा है? डू यू थिंक इट इज रिलेटेड? इफ इट इज रिलेटेड, टेल मी हाउ. करिकुलम का मीनिंग, करिकुलम इज योर सिलेबस. ओके. करिकुलम का मीनिंग इज सिलेबस. आई गॉट वन मैसेज विच आई जस्ट रेड इट. करिकुलम मतलब आपका सिलेबस. जो अभी हम कर रहे हैं वो रिलेट हो रहा है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ओके. आई मूव ऑन. Could you clarify the instructions for this assignment? Okay, कुछ लिखे हुए instructions, so आपको उसको समझने हैं. So you can ask, you are again asking for clarification. Okay, so these are the terms when you can, you know, these are the tags, in fact, you can use to get further clarification on. Okay, understanding, for understanding what you have understood. How can I apply this concept in the real world situation? ओके. मैं कैसे अप्लाई करूं? लाइक हाउ कैन आई अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन अ बिजनेस सिनेरियो? ओके. आप अभी जो हमारा क्लास अटेंड कर रहे हैं यहाँ पे, हाउ विल यू अप्लाई योर नॉलेज इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशन? इस पे सोचना. थिंक अबाउट इट. ओके. और जब भी आप हमारा यहाँ पे जो मैं पढ़ाती हूँ यूज करते हो, डू गिव मी अ मैसेज कि मैम मैंने आज ये यूज करा, इट वॉज इंटरेस्टिंग. मैंने वो यूज करा, इट वॉज इंटरेस्टिंग. ओके. दिस विल शो मी दैट यू आर लर्निंग. ये मुझे पता चलेगा इससे कि यस आप कुछ सीख रहे हो, कुछ आप फ्रूटफुल कर रहे हो. फाइन. सो डू स्टे कनेक्टेड. नेक्स्ट, व्हाट्स द मेन आइडिया ऑफ दिस लेसन? ओके. व्हाट्स द मेन आइडिया ऑफ टुडेज हिस्ट्री लेसन ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? इस तरीके से आप अपने टीचर को क्वेश्चन पूछ सकते हो. हम क्लासरूम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं. ओके. क्लासरूम में जैसे मैंने आपको बोला कि क्लासरूम में भी यू हैव टू यूज, यू नो, आस्क वैल्यूएबल क्वेश्चंस. आप कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछिए, कुछ प्रॉपर फ्रेम्ड क्वेश्चंस पूछिए. ओके. सो वी आर टॉकिंग ऑन क्लासरूम. ओके. व्हाई इज दिस कंसेप्ट इंपॉर्टेंट? ओके. व्हाई इज इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट? ना ये इकोसिस्टम हुआ. अगर आप मैथ्स टीचर के साथ कुछ बात कर रहे हो तो यू टॉक अकॉर्डिंगली. ओके. अगर आप मेरे से बात कर रहे हो तो यू कैन से ना व्हाई दिस कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट. अगर हम इस चैप्टर के लिए देखें, अभी जो मैं टॉपिक करा रही हूँ उसके लिए देखें, तो ये कंसेप्ट अगर आप यूज करोगे तो यू विल बिकम अ गुड क्वेश्चनिंग पर्सन. जो भी आपका क्वेश्चन सुनेगा उनको लगेगा कि यस यू आर अ वेरी जेन्युइन पर्सन. ओके. उनको लगेगा कि यस आप वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहे हो. फाइन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. कैन यू नो समराइज दिस सेशन फॉर मी? अगर आपको कुछ ब्रीफ कुछ जानना हो, अगर आपको शॉर्ट में जानना हो, तो यू कैन आस्क द टीचर. ओके. ये यूजुअली आप एग्जाम्स के वक्त टीचर्स को पूछ सकते हो. मैम प्लीज समराइज दिस टॉपिक फॉर मी. ओके. और प्लीज समराइज दीज बुलेट्स फॉर मी. तो टीचर्स विल हेल्प यू. ओके. समराइज मतलब उसको शॉर्ट में आप मुझे बता दो, उसका शॉर्ट करा दो. ओके. जैसे आप प्रेसी राइटिंग करते हो. फाइन. देन वी हैव व्हाट शुड आई फोकस ऑन फॉर द टेस्ट. पर्टिकुलर पूछना है आपको.
फोकस किस पे करूं मैं टेस्ट के लिए? ओके, व्हाट शुड बी द फोकस पॉइंट व्हेन इट इज द टेस्ट स्टडिंग? फाइन। तो क्लासरूम में आप ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो टू अंडरस्टैंड. ओके, व्हेन यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग, दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू कैन आस्क. नाउ questions for discussion. यहाँ पे I would like to stop as of now, and I would come back to the screen. I'm really happy that there are 80 above people with me as of now. People, just I want to pause here for today because जैसे मैंने आपको बताया कि ये काफी अच्छा डिटेल्ड लेंथी कंटेंट है. ओके, ग्रामर हम लेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, अपकमिंग सेशन में वी विल टेक ग्रामर. ओके, वी विल टेक